Deepa, Grandma, I have to write an essay on Charlie Chaplin. Could you help in some way? Grandma, sure, I'm a Charlie Chaplin fan. Go ahead and ask anything. Deepa, could you tell me his full name? Grandma, yes, it is Sir Charlie Spencer Chaplin. He was a legend. Deepa, can a funny man become a legend, Grandma? Grandma, he wasn't just a funny man. After you learn about his struggle in life, you would realize that. Deepa, then could you tell me about his life before fame? Grandma, he was born on 16th April 1889 at Kensington, London. Charlie could not get much education. His father died early and mother developed a mental ailment. Therefore, Charlie had to quit studies and work. Deepa, then how did he become an actor? Grandma, Charlie always had a bent for acting. At the age of 15, he got an opportunity to work in a humorous play. His acting skills were appreciated by the audience. This दीपा, दादी, मुझे चार्ली चैपलिन पर एक निबंध लिखना है। क्या आप किसी तरह से मदद कर सकते हैं? जरूर, मैं चार्ली चैपलिन का प्रशंसक हूं। आगे बढ़ो और कुछ भी पूछो। दादी, दीपा, क्या आप मुझे उसका पूरा नाम बता सकते हैं? दादी, हाँ, यह सर चार्ली स्पेंसर चैपलिन है। वह एक किंवदंती थे। दीपा, क्या एक मजाकिया आदमी महान बन सकता है? दादी, वह सिर्फ एक मजाकिया आदमी नहीं था। जब आप उनके जीवन संघर्ष के बारे में जानेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। तो फिर क्या आप मुझे प्रसिद्ध से पहले के उनके जीवन के बारे में बता सकते हैं? दादी, उनका जन्म 16 अप्रैल 1879 को केंसिंगटन, लंदन में हुआ था। चार्ली को ज्यादा शिक्षा नहीं मिल पाई। उनके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई और मां को मानसिक बीमारी हो गई। इसलिए चार्ली को पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। दीपा, तो फिर वह अभिनेता कैसे बन गए? दादी, चार्ली को हमेशा से ही अभिनय का शौक था। 15 साल की उम्र में उन्हें एक हास्य नाटक में काम करने का मौका मिला। उनके अभिनय कौशल को दर्शकों ने खूब सराहा। Encouraged Chaplin to seek acting as a full-time profession. He then joined a drama troupe. In 1910, he accompanied the troupe to America. As luck would have it, director Max offered Chaplin a role in his film. His first film came out in 1914. Since then, there was no looking back. Film offers flooded Chaplin's fortune. Deepa, can a man be so lucky? Grandma, it wasn't only luck. Charlie's acting talent was absolutely unique. Though born in Britain, his dream of acting was fulfilled in America. As an American actor as well as director, he shot to an instant fame as the Little Tramp in silent movies. His secret of success perhaps lay in the humor behind his pathetic face. Deepa, was he world famous even then? Grandma, yes, his humor has spread laughter all across the globe since ages. In fact, he became so famous that no film company could afford to pay him deservingly. Therefore, Charlie's made it a point to act only in those films that were produced by him. Deepa, Grandma, he is also known for his peculiar way of dressing. Can you tell me a little about that too? Grandma, his standard costume was the derby hat, moustache, cane, tight frock coat, baggy trousers and outsized shoes. And then, of course, there was his peculiar gait. Deepa, could you show me how he walked? Please, please, please. Grandma gets up from her chair and walks like Chaplin. Deepa just cannot stop laughing. Deepa, could you name some of his famous films? Grandma, his well-known movies are The Kid, 1921, The Gold Rush,
1925, City Lights 1931, Modern Times 1936, and The Great Dictator 1940. Despite the fact that these movies are classical, they managed to send generations of today too into roars of laughter. Deepa, when did he pass away? Grandma Chaplin died at the age of 88 on 25th December 1977. Deepa, could any comedian replace him after his death? Grandma, many comedians after him have tried to imitate his style, but none stand at par with Charlie till date. Deepa, thanks Grandma. I know more about Charlie Chaplin than I ever thought I would. He was truly a legend. यह चैपलिन को अभिनय को पूर्णकालिक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद वह एक नाटक मंडली में शामिल हो गए। 1910 में वे मंडली के साथ अमेरिका गए। जैसा कि किस्मत ने चाहा, निर्देशक मैक्सर ने चैपलिन को अपनी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की। उनकी पहली फिल्म 1914 में आई थी। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चैपलिन की किस्मत में फिल्मों के प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। दीपा, क्या कोई आदमी इतना भाग्यशाली हो सकता है? दादी, यह केवल भाग्य नहीं था। चार्ली की अभिनय प्रतिभा बिल्कुल अनोखी थी। हालांकि उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन अभिनय का उनका सपना अमेरिका में पूरा हुआ। एक अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक के रूप में उन्होंने मूक फिल्मों में द लिटिल ट्रैम्प के रूप में तुरंत प्रसिद्धि हासिल की। सफलता का रहस्य शायद उनके दयनीय चेहरे के पीछे छिपे हास्य में छिपा था। दीपा, क्या तब भी वह विश्व प्रसिद्ध थे? दादी, जी हाँ, उनके हास्य ने युगों युगों से दुनिया भर में हंसी फैलाई है। वास्तव में वह इतने प्रसिद्ध हो गए कि कोई भी फिल्म कंपनी उन्हें उचित भुगतान नहीं कर सकी। इसलिए चार्लीज ने केवल उन्हीं फिल्मों में अभिनय करने का निश्चय किया जो उनके द्वारा निर्मित की गई थीं। दीपा दादी, वह अपने अजीबोगरीब पहनावे के लिए भी जाने जाते हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? दादी, उनकी मानक पोशाक डर्बी टोपी, मूंछें, बैंत, तंग फ्रॉक कोट, बैगी पतलून और बड़े जूते थे। और फिर निस्संदेह उसकी अजीब चाल थी। दीपा, क्या आप मुझ दिखा सकते हैं कि वह कैसे चलता था? कृपया कृपया कृपया। दादी अपनी कुर्सी से उठती हैं और चैपलिन की तरह चलने लगती हैं। दीपा अपनी हंसी नहीं रोक पाती। दीपा, क्या आप उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम बता सकते हैं? दादी, उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं द किड 1991, द गोल्ड रश 1925, सिटी लाइट्स 1931, मॉडर्न टाइम्स 1936 और द ग्रेट डिक्टेटर 1940। इस तथ्य के बावजूद कि ये फिल्में शास्त्रीय हैं, वे आज की पीढ़ियों को भी हंसी के ठाके लगाने में कामयाब रहती हैं। दीपा, उनका निधन कब हुआ? दादी, 25 दिसंबर 1977 को 28 वर्ष की आयु में चैपलिन की मृत्यु हो गई। दीपा, क्या उनकी मृत्यु के बाद कोई हास्य अभिनेता उनकी जगह ले सकता है? दादी, उनके बाद कई हास्य कलाकारों ने उनकी शैली की नकल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी चार्ली के बराबर नहीं टिक पाया। दीपा, धन्यवाद दादी। मैं चार्ली चैपलिन के बारे में जितना सोचा था उससे कहीं अधिक जानता हूँ। वह वास्तव में एक किंवदंती थे।